Okay, hello students. So again welcome. This is our new topic, Picard method. This method is used to solve the differential equation. Okay, and the name of the method is Picard method. Okay. So what is Picard method? That is, we have a differential equation dy dx is equal to f xy with initial condition x is equal to x0, y is equal to y0. As in the all previous question, this is the initial condition. Okay. Then to get the approximation formula, so we have dy cross multiplication, that this can be write as dy is equal to fxy dx, integrating both sides within the limit y0 to y and for x x0 to x. Okay, so this is integrating, the integral of y is dy, the integral of dy is y, and the right hand side remain same as it is. The right hand side को ऐसे ही छोड़ देते हैं. So we have, this is the upper limit is y, lower limit is y0. So applying the upper limit minus lower limit, and right hand side will be equal to 0. Then we got this formula, and then we got this formula. So this is y is equal to y0 plus integral x0 to x f x y dx. Now to get the first approximation, we make some change here. So what is the change? So here we change to get y1. This is y1. This is y1 का meaning first approximation. This is y0 plus x0 to x, and this is function f x y0. ठीक है, this is here is function f x y. So to get the first approximation, we change here y to y0. So y replaced by y0 or x will be the same. ठीक है, so this is the formula for the first approximation. This is y1. ठीक है, let's go to the next page. Similarly, for second approximation, this is y2. This is y2. y2 is equal to y0. In previous approximation, there is same y0. Here is also y0. ठीक है, but here in previous approximation here is y0, but here we replace this is y1. ठीक है, that means पीछे वाले मेथड में आपने यहाँ पे y0 लिया था जब आपने y1 कैलकुलेट किया था, लेकिन जब y2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका y1 आएगा. ठीक है, so this is आपका second approximation. So in generally similarly the third approximation is given by y3. This is again y0, or this is y2. This is y2. This is y2, and so on. We can calculate first approximation, second approximation, and third approximation. ठीक है, so let us understand by numerical questions. So let we have a question. This is dy upon dx is equal to 1x plus y. So this is the equation with initial condition. This is initial condition y0 is equal to 1. ठीक है, by Picard method solve करना है. So we have dy upon dx is equal to this. So here fxy is equal to 1 plus xy. This value is known as the fxy, और this is the initial condition. ये given है यहाँ पे, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं. इसका मीनिंग होता है कि x0 की वैल्यू 0 और y0 is equal to 1. ठीक है, now applying the formula. Now the first approximation is given y1 is equal to y0 integral x0 to x f x y0 dx. ठीक है, okay, putting the value of f. What is the value of f? F is equal to 1 plus xy. So this is putting value of f 1 plus xy, but in place of y we have to replace y0. ठीक है, y के स्पेस पे क्या रखना है, y0. तो the value of the function is 1 plus xy, but in place of y we have to put y0. ठीक है, so this is the equation. Now putting the value, let's see in next page. So this is putting the value of y0 is equal to 1 and y0 is equal to 1. तो ये आपका 1 plus x है. Now integrating, this is 1 as it is. The integral of 1 is x. The integral of x is x square upon 2. So this is the formula of the integral x की power n. The integral of x की power n is equal to x की power n plus 1 upon n plus 1. This is n plus 1. ठीक है, so we got, this is the value of the first approximation. This is the value of first approximation. That means it is the value of y1. ठीक है, now similarly find second approximation y2. The formula of y2 is equal to this. y2 is equal to y0 plus x0 to x function f x. y की जगह क्या रखना है इस बार, y1 dx. ठीक है, तो now put the value of f. तो f की वैल्यू पुट करिए. what is the value of f? f is equal to 1 plus xy. ठीक है, ये f मिस्टेक्स है,
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स, वाई की जगह पुट करना y1, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 की वैल्यू ये पुट करनी है, ठीक है। तो कैसे पुट करेंगे, 1 प्लस एक्स ब्रैकेट पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू उस टाइप से पुट करेंगे, x ब्रैकेट लगा के 1 प्लस एक्स ब्रैकेट वैल्यू ऑफ y इज 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले x की मल्टीप्लाई करते हैं, इस x के अंदर मल्टीप्लाई करी, सो वी गेट x इंटू 1, तो x एक्स स्क्वायर और x क्यूब अपॉन 2, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार, तो नाउ इंटीग्रल ये वाला 1 एज इट इज कॉपी करा, इस 1 का इंटीग्रल x हो गया, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सिमिलरली इसका इंटीग्रल, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y2, ये आपकी y2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। थर्ड अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिमिलरली द वैल्यू ऑफ द थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय y3 इज इक्वल टू y0 x0 2x f x y2, दिस इज y2, ठीक है। क्योंकि जो y3 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे y2 यूज करेंगे, सो वैल्यू पुट करते हैं, तो f की फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू होगी 1 प्लस एक्स वाई, दिस इज 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ पे f नहीं लिखना, ये f नहीं लिखना, वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, तो 1 प्लस एक्स y2, और y2 की वैल्यू कहाँ से पुट करनी है, तो y2 की वैल्यू यहाँ पुट करी, तो दिस इज, ये f नहीं लगाना यहाँ पे, सो दिस इज 1 प्लस एक्स, ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपकी y2 की वैल्यू जो कि हमने यहाँ से पुट करी, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद ये इस टाइप से आ गया, उसके बाद ये x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करी, तो ये इस टाइप से x की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी गेट दिस इक्वेशन, ये f नहीं लगाना, याद रखना, ठीक है, क्योंकि f की वैल्यू हम पुट कर चुके हैं, ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, सो वी गेट y3 इज इक्वल टू दिस, सो ये बड़ी सी वैल्यू आपकी y3 की आ गई, ठीक है। आई थिंक काफ़ी लंबी इक्वेशन है, यहाँ से आपके 3 अप्रोक्सीमेशन से आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपके पास है y1 है, y2 है और y3 है, ठीक है। अब इनकी हेल्प से हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें निकालना था x इज इक्वल टू 0.1 पर निकालना था, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी y1 की वैल्यू आई थी, वहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 0.1, तो जब 0.1 पुट करेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद ये आपका आया 1.105, ठीक है, ठीक है। अब इसी वैल्यू को और रिफाइन कर रहे हैं, रिफाइन करने के लिए क्या पुट करेंगे, y2 निकालते हैं, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, तो जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन था वहाँ पे x की वैल्यू 0.1 पुट करी, तो 0.1 पुट करेंगे तो फिर से आपकी सॉल्व करने के बाद यह है 1.108, आपने इसी वैल्यू को और एक्यूरेट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली इन थर्ड अप्रोक्सीमेशन में पुट करते हैं, तो हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन में पुट करेंगे, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन पुट करेंगे तो आपकी सिंपली x की वैल्यू ये आ गई, यहाँ पे वही 0.1 पुट करा आपका सिमिलरली, तो कैलकुलेट करने के बाद ये है, ठीक है। आप देखें a की वैल्यू को मैंने रिफाइन करा, ठीक है। सो दिस इज योर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0.1, तो जब x की वैल्यू 0.1 है तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है ये 1.1080, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो सिमिलरली टू गेट द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0.2, सो फर्स्ट वी गेट x2, तो जो y1 की वैल्यू आई थी वहाँ पर आपकी 0.2 पुट करेंगे, सो वी गॉट दिस, सिमिलरली पुट इन सेकंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू पुट करी, दिस इज 0.2, तो 0.2 कैलकुलेट करने के बाद ये आ गई, और सिमिलरली थर्ड अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेट करते हैं, सो दिस इज योर थर्ड अप्रोक्सीमेशन, सो दिस इज y3, यहाँ पे y3 की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो वही 0.2 कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका 1.28 है, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0.2। अगर आपको 0.3 पर भी निकालना होता तो यही y1 y2 y3 में पहले x की वैल्यू 0.3 पुट करते y1 में, फिर y2 में पुट करते और फिर y3 में पुट करते, जो लास्ट में y3 की वैल्यू आती वही आपकी क्या होती, y3 की वैल्यू होती एट x इज इक्वल टू 0.3 पर, ठीक है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको।